Hello, hi, good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. We are here yet again with a festive special series. A warm welcome to all our AccuCheck Wealthy family. Let's wait for all our members and then we'll start with today's discussion. Today's discussion is a unique topic, one of its kind. It has a lot of new information, and today I'm also going to share some yummy recipes, some great tips and tricks to have a heart friendly diet to ensure your diabetes and your blood sugars is under control. Meanwhile, let me greet all our lovely AccuCheck Wealthy family before we start today's discussion. Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. Thank you so much for joining in today. Hello, Pramod Gautam ji. Good evening. How are you? How is your health? Hello, Mr. Terkhedkar. Good evening. Thank you for joining us today. I hope you're doing well. Hello, Mr. Reddy. Good evening. Thank you for joining us today. We are very happy to have you as a part of the AccuCheck Wealthy family. Hello, Nayan. Good evening. Thank you for joining the session for today. I hope you're doing well. Thank you so much for your active participation. Hello, Mr. Vivek Bajaj. Good evening. Thank you so much for joining today. We are happy to have you as a part of the AccuCheck Wealthy family. All right, let's wait for another 2 to 3 minutes and then we'll start today's discussion. Today's discussion is unique topic with a lot of informative user base wherein we'll understand how a heart friendly diet is essential, especially for people who are suffering from pre-diabetes or suffering from diabetes. Heart diseases occur when we do not take care of our health overall, when we do not take care of diabetes, when we can't actually control our HbA1c. So it is really essential to understand that every single day working towards your heart health is important. Meanwhile, let me greet our AccuCheck Wealthy patients. Hello, Kalicharan Sharma ji. Good evening. Thank you so much for joining our session today. Let's wait for our members so that we can start with today's discussion. Today's topic is unique, one of its kind. I am going to take you through a lot of information today, lot of knowledge sharing on heart-friendly diet, and I also have jotted some special recipes for you, which we'll discuss within the session. All right. Without any wait, let's start with today's discussion. Today's topic is about heart-friendly diet for diabetes. Uh, First of all, I want to know in the chat box from all of you that how important is it, do you feel, to take care of your diet when it comes to your heart health? Please share how much do you think is it important to take care of your health or your diet when it comes to handling heart health. I would love to know in the chat box what all do you exactly think. Heart, yes. Okay, great. All right. Okay. Thank you so much for so many responses from your end. Let me tell you, heart health or heart friendly diet is very, very important because for the people who have diabetes or who have prolonged diabetes and it is in an uncontrolled phase or it is in a phase which
is always on a higher level. It impacts your, overall health. It impacts your heart. It impacts all your voluntary involuntary activities, and it also leads to, weaker heart. So it is important that you have heart friendly diet, especially when you're suffering from pre-diabetes or diabetes. So let us start with today's topic and today's discussion. Today we are going to discuss on the benefits and key nutrients of a heart-friendly diet, whole grains and healthy fats, lean protein and limiting added sugars, watching sodium intake and portion control, heart-friendly meal planning, reading labels for heart health, heart healthy cooking tips, and then we'll discuss all your queries. Let us understand what are the benefits and key nutrients of a heart friendly diet. Okay, benefits of a heart friendly diet is that it reduces the risk of heart disease. Okay, please understand, it's very, very important that heart diseases are controlled. Okay, whenever we have any kind of, concerns in terms of heart problems, the first major change is in your diet. Okay, so to have a heart friendly diet, it helps you reduce the risk of heart diseases. Heart disease का मतलब क्या है? हार्ट अटैक आना, हार्ट के काम करने की जो ताकत होती है या जो क्षमता होती है वो कम होना। ओके, या फिर कोई भी हार्ट से रिलेटेड या हार्ट के जो आर्टरीज है, वेन्स है, या पूरा हार्ट का जो फंक्शनिंग है उसमें ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट होना, और इस तरह के बहुत सारे हार्ट के एलिमेंट्स है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं जब आप आपके डाइट की केयर नहीं करते हैं, या आप आपकी जो ब्लड शुगर्स है, आपकी A1Cs है, उनको कंट्रोल नहीं करते हैं। ऑलराइट, व्हाट आर द की न्यूट्रिएंट्स फॉर हार्ट हेल्थ? अभी हमने ये तो समझ लिया कि अगर हम हार्ट फ्रेंडली डाइट रखते हैं तो किस तरह से हमारे डायबिटीज को या हमारे हार्ट फंक्शनिंग को हेल्प करता है। अभी हम ये समझेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड की न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ हार्ट फ्रेंडली डाइट। फाइबर aids in maintaining healthy blood sugar levels and reduces cholesterol. Omega 3 fatty acids help lowers triglyceride levels and reduces inflammation. Antioxidants protect against damage caused by free radical. Okay, फाइबर, जैसे आपको पता है फाइबर हमारे खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको रेगुलरली लेना। वो आप कैसे लेंगे? आपके फल, सब्जियां, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे बाजरा, ज्वार, होल व्हीट फ्लावर, आपके स्प्राउट्स, दाल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सारे आइटम्स से आपको अच्छा खासा फाइबर मिलेगा। तो खाने में फल, सब्जियां, सलाद, आप रायता, सब्जियां, दाल में सब्जियां, अलग अलग प्रकार की दाल, अलग अलग प्रकार की धान आपको खाना बहुत जरूरी है। उससे आपका जो हार्ट है उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस किस में होते हैं? नट्स एंड ऑयल सीड्स, ठीक है, जैसे अखरोट या वॉलनट, ठीक है, अलग अलग टाइप के नट्स एंड ऑयल सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। ओके, फिश, अलग अलग प्रकार के फिश, जो खासकर नॉन वेजिटेरियन हमारे यूजर्स है उनके लिए, सो उसको भी आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाइंड करके आपके बॉडी से रिलीज करना, निकालना, ये काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स सारे फलों में, सारे सब्जियों में अवेलेबल होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं।
फाइबर कौन कौन से हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ब्लड शुगर कम करने में? तो देखिए ये सब कैसे इंटर रिलेटेड है। जब आपकी ब्लड शुगर कम होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट पे जो प्रेशर आ रहा है या हार्ट पे जो दबाव बन रहा है, क्योंकि आपकी जो वेन्स है उसमें फैट डिपॉजिशन हो गया है, और उस वजह से जो ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू आपके हार्ट तक पूरा ब्लड पंप इन पंप आउट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आपकी शुगर अंडर कंट्रोल आएगी, अपने आप आपकी कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल आएगी, क्योंकि आप एक हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहे होंगे, उसी के साथ आपकी हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, so all of these three things are interrelated. If you take care of your blood sugar, if you take care of your HbA1c, it will automatically help you control cholesterol levels, and your cholesterol levels will in turn protect your heart, improve your heart functioning, and help supply of high amount of bloods in your body for your heart. All right, let's understand omega 3 fatty acids. They are present in soybean, canola oil, lot options of fishes like mackerel, salmon, vegetable like spinach, walnut, chia seeds, kidney beans जो राजमा जिसको हम बोलते हैं, flax seeds, ये सारी चीजें हैं, they are rich in omega 3 fatty acids. Let us now understand antioxidants. Antioxidants protect against damage caused by free radicals. So, let us understand which all foods are high in antioxidants. Blueberries, dark chocolate, artichokes, green tea, beans, red cabbage, kale, strawberries, spinach, green tea. ओके, ये सारे फूड्स है, दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज स्पीक टू योर हेल्थ कोच द नेक्स्ट टाइम शी कॉल्स यू to understand what are antioxidants and which are the food items which are rich in antioxidants. Okay, so these are the foods which will help you protect against free radicals. Okay, let us understand which are the whole grains and healthy fats. Whole grains are rich in fiber, vitamins, and minerals. They help lower the risk of heart disease and manage blood sugar levels. Examples of whole grains include brown rice, quinoa, and whole wheat bread. ठीक है, तो अगर आप आपके न्यूट्रिशनिस्ट या आपकी हेल्थ कोच की सजेशंस फॉलो कर रहे होंगे रेगुलरली, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके खाने में देखेंगे, जहां पे आपको रागी जिसको हम नाचनी कहते हैं, ओके, नेक्स्ट जवार, बाजरा, ओके, काफी अलग अलग ग्रेन्स, होल व्हीट, क्विनोआ, ओट्स, ये सारे आइटम्स रेगुलरली आपके डाइट में उन्होंने इंक्लूड किए होंगे। हेल्दी फैट्स, नाउ काफी लोगों को ये मिथ है या ये ऐसे गलत लगता है कि फैट्स खाना या ऑयल खाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत है। सम अमाउंट ऑफ फैट इज essential फॉर योर डे टू डे फंक्शनिंग इन द बॉडी, एंड हेंस गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स आपके खाने में होना बहुत जरूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज हेल्दी फैट्स। Healthy fats such as monounsaturated and polyunsaturated fats are beneficial for heart health. They can help reduce bad cholesterol levels and lower the risk of heart disease. Sources of healthy fats include avocados, nuts, and olive oil. There are a lot of oils, ठीक है, जो जिसके कॉम्बिनेशंस करके आप उसको एक हेल्दी ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। Having said that, every month there is a certain X consumption that is essential for every person at home. Okay, every person individually. Okay, so having half liter of fat intake um, in the entire month for 30 days is ideally recommended.
उससे ज्यादा आपका फैट इंटेक नहीं होना चाहिए। व्हेन आई से फैट, इसमें सारी चीजें आ गई, आपका घी, बटर, आपका लिक्विड फैट, नॉर्मल तेल जो खाने में इस्तेमाल होता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एंड दैट इज अ टोटल ऑफ हाफ लीटर in the entire month for one person. If example you're four people in a family, then 2 liters of oil, or basically 2 liters of fat for the entire month has to be the ideal consumption. हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी फैट्स, तो गुड फैट्स कौन से हैं और बैड फैट्स कौन से हैं, ये हमने काफी बार डिस्कस किया है। बट जस्ट ये समझिए कि इंडियन ईटिंग में बहुत कम ऐसे फैट्स है जो अनहेल्दी है। ऑल द ऑयल्स, ऑल द एनिमल फैट्स वी हैव आर हेल्दी, but just the problems with Indians is that we eat high quantity, more amount, and that's the reason it impacts the body. Okay, but ideally if we have half liter in the entire month, that won't affect us, that won't affect our weights, and that won't affect our blood sugar levels or impact our heart in any way. Let us understand how protein and sugars are responsible for maintaining your heart healthy. Lean protein. Choose lean protein sources such as poultry, fish, and plant based protein. Avoid high fat meats and processed meats. Include protein in every meal to promote satiety and stabilize blood sugar levels. लिमिटिंग एडेड शुगर्स, हम सभी को पता है प्रोटीन हमारे खाने में कितना जरूरी है और वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में कितनी हेल्प करता है। इसीलिए रेगुलर डे टू डे रूटीन में प्रोटीन इंटेक अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग अहेड, लिमिटिंग एडेड शुगर्स, रिड्यूस एडेड शुगर्स इन द डाइट टू improve heart health. Use natural sweeteners like stevia or opt for moderate consumption of natural sugars. Be aware of hidden sources of added sugars in processed foods. Watching sodium intake and portion control. हम सभी को पता है सोडियम, खाने में जो नमक होता है वो कितने परसेंट हमारे लिए हेल्दी है और कितने परसेंट उससे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। Okay, so let us understand how this sodium and how this portion control is affecting our heart friendly diet for blood sugar control. High sodium intake can increase the risk of high blood pressure and heart diseases. Read food labels to identify high sodium content. Choose low sodium alternatives and reduce the use of salt in cooking and seasoning. Use herbs and spices to avoid flavor instead of relying on salt. So, let me tell you very important tip for today, and you all can note this down. The प्रिजर्व्ड आइटम्स विच वी कुक इन समर, ठीक है, तो नॉर्मल इंडियन घरों में अचार, चटनी और पापड़, ये तीन चीजें काफी ज्यादा मात्रा में बनती हैं और काफी ज्यादा मात्रा में लाई जाती हैं, खाई जाती हैं। ठीक है, तो प्लीज समझिए इनको ज्यादा समय तक यूज करने के लिए इनमें एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव सॉल्ट डाला जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड हैविंग पापड़, पिकल, chutneys because all this have a high amount of salt which is used as a natural preservative. If you ask me when can we have, let me tell you, you can have it once a week, twice a week, but don't have it with every meal or in every lunch or in every dinner. Twice a week or you're on a cheat meal day, definitely have it. This is specially for people who have comorbidity as hypertension, जिनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है डायबिटीज के साथ, उनके लिए स्पेसिफिकली ये टिप है, जरूर फॉलो कीजिए और अपने हेल्थ कोच को फीडबैक लीजिए कैसे आपने ये फॉलो किया और इससे आपके ब्लड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आया। ऑलराइट, moving ahead, let us understand portion control. Practicing portion control helps manage blood sugar levels
and maintain a healthy weight. Use smaller plates and bowls to control portion sizes. First, fill half of your plate with non starchy vegetables. Limit the intake of high calorie foods and beverages. ठीक है, तो portion control, I think your health coaches have been telling about this to you over and over again. Portion control, खाने की मात्रा, क्वांटिटी आपके खाने में बहुत ज्यादा मायने रखती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ portion control in your eating. Okay, please understand this. Every single additional spoon you serve adds on to some calories. Best idea to do it is, मैं ये टिप काफी सारे पेशेंट्स को देती हूँ और काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है. प्लीज ट्राई कीजिए. 30 minutes or within 30 minutes of your lunch and dinner, have a glass of water, normal पानी. कुछ उसको गर्म नहीं करना है, कुछ उसमें नींबू वगैरह नहीं डालना है, नथिंग. नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर और नॉर्मल जस्ट द प्लेन वाटर विच वी हैव, हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो आपको एक ग्लास पहले पीना है, जस्ट 15 से 30 मिनट खाने से पहले. रिमेंबर इट एंड डू इट एवरी सिंगल डे बिफोर योर मील. दो बेनिफिट्स इससे होते हैं. एक तो आपका पेट ऑलरेडी 1/4 भर जाता है, तो आपका इनटेक थोड़ा कम होता है. दूसरी चीज, क्योंकि आप ऑलरेडी फिल फुल फील करते हैं, इसीलिए आपको जो आइटम्स सामने दिखते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में आप लेते नहीं हैं. सो द पोर्शन इज कंट्रोल्ड and the intake is less, which helps eventually manage your heart health and manage your blood sugar levels. All right, moving ahead, let us understand how to plan your heart friendly diet. ओके, हमने ये तो देख लिया कि हार्ट पे अच्छे डाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या टिप्स है जिसकी वजह से आपकी हार्ट इंप्रूव होगी. लेकिन अभी हमें देखना है कि डे टू डे डाइट में हार्ट फ्रेंडली डाइट कैसे हमको मेंटेन करनी है. ओके, include a variety of fruits and vegetables in your meals. एवरी सिंगल मील, ये आप सब लोग 100% फॉलो कीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने बोला है सब्जियां और फल को अवॉइड करना है. कोई भी फल आपके मील के साथ नहीं लेना है. लंच के तुरंत बाद, लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ फ्रूट नहीं लेना है. फ्रूट शुड ऑलवेज बी अ मिड मॉर्निंग और अ मिड इवनिंग स्नैक. ठीक है, मतलब सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने में बीच का जो समय होता है वहां आपको फ्रूट लेना है, या तो दोपहर के खाने में और रात के खाने में जो बीच का समय है नाश्ते वाला, वहां पे आपको फ्रूट लेना है. ठीक है, फ्रूट खाने के साथ कंबाइन मत कीजिए. एवरी सिंगल डे एक फ्रूट लेना आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है. डेली सेम फ्रूट मत लीजिए, रोज अलग अलग फ्रूट लीजिए. जो फल वाली सब्जियां होती है जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, दूधी, गाजर, बीट, ये सारे जो सब्जियां हैं जो आप हल्के से कच्चे या हल्के से बॉईल करके खा सकते हैं, उनको भी आप एज अ मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक ले सकते हैं. ओके, प्रोटीन आपके हर एक प्लेट में, आपके हर एक ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, ये सारा जो 4 मेजर मील्स है इसमें आपको प्रोटीन लेना है. तो प्रोटीन किस में होगा? अंडा, बेसन चीला, उबले हुए मूंग, मूंग का डोसा, दाल का डोसा, ऐसे अलग अलग आइटम्स हैं काफी सारे जो आप आपके नाश्ते में ले सकते हैं. सिमिलरली आपके लंच में आप सब्जियां, दाल, दही, छाछ, सोयाबीन, काफी सारे आइटम्स हैं जो आप लंच में ले सकते हैं. बट वन सोर्स ऑफ प्रोटीन in every meal is important. All right, moving ahead, opt
फॉर होल ग्रेन्स एंड लिमिट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। होल ग्रेन्स का मतलब क्या है? बाजरा, ज्वार, रागी, गेहूं का आटा जो छाना नहीं है, ठीक है, जिसको आपने छाना नहीं है, पूरा आटा जो आप नॉर्मल लाते हैं जो अनसीव्ड है, उसको आपको लेना है। ऐसे काफी सारे होल ग्रेन्स है जो आप ले सकते हैं। लिमिट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो मैदा है या जो व्हाइट राइस है, व्हाइट चावल है, वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। क्विज टाइम। सो आपको मैंने अभी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कितना उसमें से आप समझ पाए हैं। तो एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको आपको आंसर करना है। हाई सोडियम इंटेक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। ट्रू, फॉल्स? जल्दी जल्दी से मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चैट बॉक्स में दे दीजिए। डू यू थिंक हाई सोडियम इंटेक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज? ट्रू या फॉल्स? मैं सारे मेरे यूजर्स को ये बताना चाहूंगी। सोडियम मतलब नमक खाने से क्या आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ती है? क्या आपके हार्ट की तकलीफें बढ़ती है? यस या नो? ट्रू या फॉल्स? ग्रेट, वाओ, 100% इज द रेशियो जहां पे आप सभी ने सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग यू is helping you improve and work on your health. All right. Moving on, let us understand reading labels for heart health. I think हमारे सारे यूजर्स अभी काफी ज्यादा सेल्फ हेल्दी हो चुके हैं, जो खुद से अपने हेल्थ की केयर करना सीख गए हैं। और इसीलिए आई थिंक आप सभी को पता है कि लेबल्स रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट से कोई भी पैकेट फूड या पैकेट प्रोडक्ट खरीद रहे हो, काफी बार उसमें हिडन सोडियम, हिडन प्रिजर्वेटिव्स, हिडन कलरेंट्स, काफी सारी शुगर, मैदा, ये सारे आइटम्स होते हैं। सो आप कभी भी कोई भी फूड आइटम खरीद रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड लेबल्स फॉर हार्ट हेल्थ। ऑल राइट, मूविंग ऑन। Heart healthy cooking tips. Choose cooking methods that promote heart health, such as grilling, baking, and steaming. तो आई थिंक हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी ओकेजन है, बर्थडे है, पार्टी है, एनिवर्सरी है, पूजा पाठ है, या कुछ यू नो अन अनसाइडफुल इवेंट भी है, जैसे किसी की डेथ एनिवर्सरी, डेथ, या ये सारी चीजें भी हैं, इसमें भी खाने का बहुत बड़ा महत्व है या बहुत इम्पोर्टेंस खाने को दिया जाता है। तो इस समय पे जो खाने की चीजें हैं या जो फूड आइटम्स है, उनको हम इस तरह से फोकस करें कि अगर हम ऑयली चीजें डिस्प्ले कर भी रहे हैं या ऑयली चीजें हम खाने में रख भी रहे हैं, तो उसके साथ थोड़े हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल हमें उसमें रखने चाहिए। अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्रि जल्दी शुरू होने वाली है। तो उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने घर पे कोई पार्टी, गरबा, फंक्शन, आपके सोसाइटी में आप फूड प्लानिंग या ऐसे कुछ भी सेलिब्रेशन करने की सोच रहे हैं, सो इन दैट टर्म्स इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये समझे कि कहीं पे भी आपको खाने का सिर्फ इम्पोर्टेंस फ्राइड फूड या बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी आपके यहाँ आ रहा है वो उनके हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। एंड हेल्दी ऑप्शंस भी हमेशा अवेलेबल रखिए, सो पीपल कैन चूज। लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे फ्राइड पोर्शंस लेने हैं या मुझे हेल्दी पोर्शंस लेने हैं, ताकि जो हेल्थ कॉन्शियस फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हैं, उनको ये ऑयल आइटम्स या ये ऑयली फूड्स नहीं खाने पड़े। ऑलराइट।
Yes, and with this, we come to the end of today's discussion. And as promised to all my lovely users, I am sharing a nice set of recipes which I have found for all my users. Very easy, very simple, heart friendly recipes. Just give me a minute and I will share my screen to share the recipes. Meanwhile, I would love to know in the chat box आपके हिसाब से कौन सी एक ऑयली आइटम है या ऑयली फूड आइटम है जो आप क्विट करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद है और हमेशा जब वो आपके सामने आती है आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी खाने की चीज है? मेरे लिए ऐसी चीज है समोसास, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेम्पटिंग होते हैं। आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है? Please update me in the chat section so I can help you to make healthier versions of it. Yes, I would love to know what are those recipes जो आपको बहुत ज्यादा यमी लगती हैं, बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। They are absolutely tempting and you love them. Yes, waiting for your chat responses. वाओ! इतनी सारी अमेजिंग रेसिपीज। आई एम श्योर आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा ये सारे रेसिपीज के नाम सुन के। बट प्लीज रिमेंबर, पोर्शन कंट्रोल इज द की मंत्रा फॉर ऑल ऑफ अस। We will not have more than one serving the next time we have this. All right. Going ahead, let us start with today's recipes as promised for all my lovely AccuCheck Wealthy family. काफी अमेजिंग है, काफी अमेजिंग रेसिपीज है। इनकी लिंक भी मैं आपके कोचेस के साथ शेयर करूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। लिए थे जो अच्छे से भीग चुके हैं उसे साफ पानी में बदल दिया है और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे इन छोलों को आप बनाएंगे तो आज के बाद आपको लगेगा कि हम बेवजह इतना सारा ऑयल डालते थे। तो चलिए अब छोले को मैंने कुकर में डाल दिया। सबसे पहला इंग्रेडिएंट डाल दीजिए उसका स्वाद अनुसार नमक। एक प्याज को बारीक कट करके डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए एक हरी मिर्च, सिर्फ एक हरी मिर्च, ज्यादा नहीं। 3 से 4 कली लहसुन ग्रेट की हुई, 1 इंच का टुकड़ा अदरक है उसे भी मैंने ग्रेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है। अब ध्यान से समझिए क्यों ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में छोटे छोटे पीस टमाटर के बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो टमाटर को ग्रेट कर लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ओवर पानी नहीं डालना था, जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए बस उतना ही पानी डाल दिया। अब आप इसको 2 विसिल लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने दीजिए। चलिए छोले के साथ बनाने वाली हूँ मैं फटाफट वाला एक रायता, जिसके लिए मैंने दही को फेंट लिया है। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा नमक जो स्वाद अनुसार होता है वही डाल दीजिए और इससे थोड़ा सा पानी डालिए। क्योंकि दही काफी गाढ़ा है, पतला दही है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है।
हमें ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आज हम ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं, तो आप इतना अच्छे से बनाइए कि सभी कहें कि हाँ, महीने में कम से कम 8 दिन तो हमें इस टाइप का जरूर खाना खाना चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी कुटी हुई काली मिर्चें, हरा धनिया। अब मेरे पास तो अनार था तो मैंने अनार का रायता बनाया। आपके पास जो भी फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, उसका आप रायता बना सकते हो। इसको फ्रिज में रख देते हैं। मैंने 1/4 कटोरी पानी लिया है, उसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत कम डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग है इसलिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच छोले मसाला, जो कि मैं घर में बनाती हूँ। दूसरी बात, मिर्ची हमेशा कम रखिए इस खाने में, क्योंकि जो 0% ऑयल होता है, तो ऑयल ना डालें, इसकी वजह से वो मिर्च ना ज़्यादा लगने लगते हैं। तो जितना आप खाते हो मिर्च, उससे क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए मिर्च की। बाकी सारे मसाले वही डालिए, बस मिर्च थोड़ा कम करिए, तो आपको वो बराबर खाना बैलेंस होके लगेगा। छोले के साथ आज बनाने वाली हूँ टिक्की। टिक्की जो कि हम बिना ऑयल के बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल लिए हैं, क्योंकि हम बिना ऑयल के बनाने वाले हैं। आलूओं में मैं डाल रही हूँ थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ी सी हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। इस सारे आलू को हम मैश कर देते हैं। आप इन सब्जियों में प्याज ना डालें तब भी बन जाएंगी, प्याज डाल रहे हो तब भी बहुत बढ़िया बनेंगी। आपको तो ये यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में इतने सब लोग खुश हैं, और आप भी जब बनाओगे तो सभी आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। क्योंकि कभी कभी की बात और होती है, हम बिना ऑयल की कोई सब्जी बना लेते हैं, वो भी उबली उबली लगती है, लेकिन ये सब्जियां आपको उबली हुई लगेंगी भी नहीं, और छोटी छोटी ट्रिक्स फॉलो करोगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी। पूरा हफ्ता आप बिना ऑयल के खाना खाओगे और सेहतमंद रहोगे। ये टिक्कियां मैंने बना ली हैं, 4 टिक्कियां बन गई हैं। हम 2 जनों का खाना बना रहे हैं, उस हिसाब से मैं 4 टिक्की बना रही हूँ। आप ज़्यादा भी बना सकते हो। यहाँ मैंने तवा रख दिया है, नॉन स्टिक तवा है, जिस पर मैंने स्लो गैस पर इन टिक्कियों को रख दिया है। कोई ब्रश से मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। धीरे धीरे, बस जल्दी जल्दी मत पलटाइए, आराम से पकने दीजिए उसे। ये देखिए गोल्डन कलर आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई जैसी नहीं चाहिए, पर जितना अच्छा गोल्डन कलर आ जाए बस काफ़ी है। ये देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया सिक रही हैं। कोई ऑयल नहीं लगाया है, आपके सामने ही बन रहा है। मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो बड़ा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको सारा दिखेगा कि कोई एक बूंद ऑयल मैंने यूज़ नहीं की है, कहीं मैंने ग्रीस नहीं किया है कुछ भी। छोले को खोल के देख लेते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। छोले गल गए हैं कि नहीं, ये हमें चेक जरूर करना है। छोले बहुत ही बढ़िया गल चुके हैं। गैस ऑन कर देते हैं, और अब हम जो मसाला जो मैं बना चुकी हूँ वो इसके अंदर डाल देती हूँ। डालने के बाद मिक्स करने के बाद एक विसिल लगा लीजिए। विसिल लगाने से होगा ये, जो टमाटर प्याज सारे छोलों के अंदर मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि छोले कितने बढ़िया बन गए। वापस से जब कुकर को खोलोगे, हैरान हो जाओगे कितने बढ़िया छोले बने हैं। ऊपर से बस धनिया की गार्निश कर दीजिए। अब लगा लीजिए थाली, और यहाँ पर थाली में मैंने सैलेड रख दिया है, छोले रख दिए, और मैंने यहाँ पर रायता रख दिया है, टिक्की रख दी। अब यहाँ पर मैंने आज ज्वार की रोटियां बनाई हैं। ज्वार की रोटी कैसे बनाई जाती हैं, अगर आज आप नए हो तो मेरी पिछली वाली थालियां देखिए, उसमें मैंने रोटियां ही रोटियां सारी रेसिपी दी हैं। आज की थालियों में मैं सब्जियां ही सब्जियों की रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे की थाली हो गई। कौन कहेगा इस थाली को देख कर के हमने बिना ऑयल का खाना बनाया है। तो चलिए अब बनाते हैं एक और थाली। I hope you all got some gist about how oil free cooking can be done. बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने एक सैम्पल थाली का आपको दिखाया, कुछ सैम्पल रेसिपीज दिखाई जो टोटली ऑयल फ्री कुक हो सकती हैं, और सिंपल इंडियन कुकिंग, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट एक्स्ट्रा भी नहीं उसमें गया है. Please do try these recipes. The link is shared with your health coaches. You can ask them and they'll definitely help you out. If you all want, the link will be shared in this chat section from our admin in next 10 minutes, so that you can use this link and you can see all the thalis.
7 days, 7 thalis are prepared for all the cooking. All right. So, with this, we come to the end of today's session, and the session is open for questions. I am very happy and excited to help all of you. Please drop in your questions in the chat box. Hello, Pramod ji. Good evening. Thank you for your active participation. No worries. I will inform your health coach to share this with you on the chat, and she will share the link with you. Please drop in a message to her and she will definitely help you out. The link is already being shared with your health coach. Thank you so much for your feedbacks. I try to make it as much simple as possible for all our users, क्योंकि मुझे पता है हम सभी के पास इतना समय नहीं है कि हम स्पेशल कुकिंग करें, कि डायबिटिक घर में कोई है उसके लिए अलग कुकिंग और बाकी सबके लिए अलग कुकिंग। तो सभी घर में लोग इस प्रकार का खाना खाते हैं, तो हार्ट हार्ट विल बी हेल्दी, your blood sugars will be under control, and the amount of energy and enthusiasm you will have will be just amazing. Please try kijiye, and don't forget to share your feedback with your health coaches on the panel. We will definitely help you out. All right. If we don't have any questions, we can still watch one more thali recipe. Let me just share my screen and we can continue for the next thali. आज के खाने में मेरी मिक्स दाल बननी है, मिक्स वेज बननी है और मल्टीग्रेन आटे की रोटी बननी है। तो मिक्स दाल मैंने 1 कटोरी जैसी मुझे चाहिए होती है घर में, मैंने सारी 4 दालें मिक्स की हैं, उड़द दाल, मूंग दाल छिलके वाली, चना दाल और मसूर की दाल। इनको भिगा के रख दिया था, इसका पानी हटा दिया है और यहाँ मैं सादा कुकर ले रही हूँ जो कि बिल्कुल खाली कुकर है, जिसमें कोई ऑयल नहीं है। उसमें मैंने जीरे के कुछ दाने डाल दिए हैं। यहाँ मैंने मिक्सर के जार में 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक लिया है और 4 से 5 कली लहसुन की लिए हैं, जिसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अब ये छोटी सी ट्रिक है, जीरा नॉर्मल कुकर में भुनता रहा, थोड़ा लाल होता रहा बिना ऑयल के। अब हम इसमें टमाटर वाला सारा मिश्रण डाल देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर का जो कच्चापन आता है, उबली उबली दाल लगती है, वैसी नहीं लगेगी। इसको आप पका लीजिए, जिसमें लहसुन वगैरह भी है, सारी चीजें पक जाएं। आप प्याज डालना चाहें तो प्याज भी डाल सकते थे, पर मेरे यहाँ जो मिक्स दाल बनती है उसमें प्याज नहीं डलता है। टमाटर का काफ़ी हद तक पानी जब सूख जाए तब इसमें मसाले डालिए। जैसे इसमें मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर डाला, बहुत थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और स्वाद अनुसार पूरा हमें नमक डालना है दाल का। इन सारे मसालों के साथ आप टमाटर को भून लीजिए, इससे आपको दाल का स्वाद कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ सारी धुली हुई दालें। दाल में हम पानी डाल देंगे जैसी आपको कंसिस्टेंसी पसंद है। वैसे मैंने 1 कटोरी दाल में मैंने 2 से 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है। बहुत थोड़ी सी मैं इसमें कैरी भी डाल रही हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हींग, मतलब 1 पिंच हींग था जिसे मैंने पानी में घोल के रख दिया था, वो इसमें डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, मुझे कम लग रहा था। आप क्या करेंगे, इसे 2-3 सीटी लगाकर आप इसे स्लो गैस पर पका लेंगे तो दाल का तो टेंशन खत्म, कोई तड़का वगैरह लगाना नहीं। Do you know what spikes your sugar level? Does rice spike your sugar level, or when you eat roti? अब यहाँ पर मैं एक और कुकर ले रही हूँ जिसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, टमाटर बारीक कटे हुए डाल दिए 2 से 3, अदरक ग्रेट किया हुआ डाला है। ये बिना प्याज बिना लहसुन के सब्जी बना रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। टमाटर में नमक डालने से क्या होगा, टमाटर अपना पानी रिलीज करेगा, नीचे हमारी सब्जी जलेगी नहीं। ये छोटी सी ट्रिक है, जरूर फॉलो करना। सारी सब्जियों में मैंने लिया क्या है, जैसे बैगन, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, मटर, गाजर और आलू। जो भी आपके पास मिक्स वेज हो वो आप सारी डाल दें। अब जो सारी सब्जियां हैं हमने धो के रखी हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं।
इसके अंदर मैंने आलू बैगन भी था तो इसलिए पानी डालकर रखा था, जिसकी वजह से ये भी होगा कि ये सब्जियां जलेंगी नहीं। अब बाकी के मसाले डालिए, जैसे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था सब्जियों के अकॉर्डिंग तो नमक डाल दिया। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया और इसे आप थोड़ा सा चला लीजिए। दाल में भी एक तरफ विसिल लगी रही है और सब्जियों को हमें थोड़ा सा और पकाना है, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, सब्जियां अपना पानी रिलीज करें तो पानी पानी वाली सब्जी ना बने। थोड़ा सा फुल गैस पे पका लीजिए। अब देख रहे हैं आप नीचे कैसे पानी पानी आ गया ना सारी सब्जियों का। टमाटर और सारी सब्जियों का पानी हो गया है तो कोई डर वाली बात नहीं है, आपकी सब्जी बिल्कुल नहीं जलेगी। बस आपने अच्छे से भून लिया। अब आप प्रेशर कुकर से विसिल लगा लीजिए। 1 से 2 सीटी में ये सब्जी आपकी कुक हो जाएगी। एक तो ये सब्जियां आसानी से बन जाती हैं, दूसरा ये बहुत हेल्दी होती हैं, टेस्टी भी बहुत होती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल भी उबली उबली नहीं लगती हैं। आज हम सैलेड बना रहे हैं मिक्स वेज का ही, तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया सबको बारीक कट कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस, चाट मसाला। अब हम दोनों कुकर खोल के देखेंगे। पहले दाल को देख लेते हैं। ये देखिए दाल बहुत ही परफेक्ट बन गई है। मैं हमेशा दाल को मथनी से पीसती हूँ, तो इस तरीके से मैं पीस रही हूँ। आप चाहें तो हैंडी से पीसिए या ऐसे ही खा लीजिए, आपकी मर्जी, पर मैं इस तरीके से ज़रूर पीसती हूँ। बनाइए आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप बनाते हो, जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, बस तरीका यही होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, वो कुकर भी देखना है जिसमें हमने मिक्स वेज बनाई है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जली है ये सब्जी और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट भी हो गई है। हल्का सा पानी रह गया है। बस आलू सॉफ्ट हुआ है, मतलब सारी सब्जियां ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए हल्का हल्का पानी है नीचे, आप चाहें तो और भी सुखा सकते हो। अब दोनों सब्जियों में हरे धनिए की गार्निश कर दीजिए। हो गई आपकी सब्जियां। चलिए थाली लगा लेते हैं। इसमें मैंने दाल डाल दी है और इसमें मिक्स वेज रख दिया है, साथ में मैंने दही रख दिया है, मिक्स वेज सैलेड भी बनाया है और यहाँ पर मैं ऊपर से मैं थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ इसमें पीनट्स की। आज बिना घी की सादी रोटी बनाई है जो गेहूं की रोटी होती है। रोटियां भी मैं बिल्कुल बिना घी के बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। लीजिए थाली बहुत ही बढ़िया है, इसे खाकर एंजॉय कीजिए। I hope this helps you. Oil free cooking is very, very easy, very, very simple. Do follow all the recipes. Please understand, keeping your lifestyle active, keeping your health, uh, improving day by day. It is important that you work on it every single day. With this, I have few questions. Let me answer all those questions and then we'll discuss about any more information you all need. How much walnut can be consumed in a day? Should it be soaked? Hello, Sanjeev ji. Good evening. Thank you for joining us today. Walnut काफी हेल्दी है, उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स है जो आपके ब्लड शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। आई विल रेकमेंड एवरी सिंगल डे अर्ली इन द मॉर्निंग आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक रेकमेंड किया होगा आपके हेल्थ कोच ने। उसके साथ ही आप 2 pieces ऑफ हार्व्स, आमंड हार्व्स, वॉलनट हार्व्स, मतलब एक पूरा वॉलनट आप ले सकते हैं सुबह के समय, या उसके जो 2 हाफ पीसेस होते हैं वो। ठीक है, सोक्ड है तो बेटर है, अनसोक्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर इज नो चेंज इन द न्यूट्रिएंट्स और द न्यूट्रिशन लेवल। द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप सोक करके वो लेते हैं तो आपके बॉडी में डाइजेस्ट करना या बॉडी में उसको यूटिलाइज करना इजी हो जाता है कंपेयर टू द अनसोक्ड वंस। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, walnuts are healthy, consume them every single day up to 1 or 2 pieces. Hello Mr. Chakravarti, thank you so much for your active participation today. Free radicals will be removed by antioxidants
And what about toxins in the body? How they will be removed? Is it by say? Don't worry. Don't think so much about कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करेगा, कैसे करेगा. आपको बस 3 चीजें याद रखनी है. ईट हेल्दी, exercise healthy, keep checking your blood sugars. If you do these 3 things regularly, all the other nutrients, antioxidants, toxins, vitamins, minerals, everything will be taken care of. Okay, so don't worry, just follow these 3 simple steps. You don't need to complicate so much. Simple things will help you live a healthier life. We have shared the link of today's oil free recipes in the chat box. Do copy paste it or save it with you, or else message your health coach and she will share this link again with you on the chat window. Hello, Shaktidhar Singh ji. Good evening. Thank you so much for your active participation today. Which almond is better? Normal almond or chila hua almond? There's nothing like this. As I told you, in the case of walnut, same for almond. अगर आप उसका पील निकालते हैं तो उसका जो बॉडी में अब्जॉर्प्शन है या बॉडी में यूटिलाइजेशन है वो जल्दी हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि उसका न्यूट्रिशन आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप छिलका रखते हैं या निकालते हैं. तो कोई डिफरेंस नहीं है. आमंड का जो न्यूट्रिशन है वो उसके बीन्स में, सीड में होता है, ना कि उसके पील में. तो आप रखिए, आप नहीं रखिए, इट्स द सेम. इट्स जस्ट दैट इट्स एब्जॉर्प्शन विल बी इजियर एंड क्विकर. All right, with this, we come to an end for today's session. Don't worry, next week I'm bringing you a new topic, set of new information, a lot of learnings for all of you. Meanwhile, festive season is starting soon. I'm sure you all are super excited and you all are looking forward to a series of information from me and my team. Wait for the festive season and we will definitely help you with a lot of information for the upcoming festivals we have around and in India. Meanwhile, take care of your health, eat healthy, and enjoy your weekend. Thank you. Have a great day.